خاص اس خبر کے ساتھ مانسون کے 10ویں اسپیل نے رنگ جما دیا ہے۔ مستطیل بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع، کئی علاقوں میں 1 سے 1.5 فٹ تک۔ صوبائی وزیر بلال یاسین ایم ڈی واسا فیلڈ میں متحرک ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی بتائیے۔ جی میں لاہور کے علاقے لکشمی میں موجود ہوں اور لکشمی میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو اسپیل 10واں مونسون کا لاہور میں داخل ہوا تھا 1 گھنٹے سے زائد جم کے برسا ہے۔ بلال یاسین صاحب اس وقت لکشمی میں موجود ہیں، واسا کی ٹیمیں ایم ڈی واسا بھی موجود ہیں۔ بلال یاسین صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں سر کیا پوزیشن ہے علاقوں میں، پانی کتنی دیر تک نکل جائے گا، بارش رکنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں یہ شارٹیسٹ ڈیوریشن میں ہیویسٹ اسپیل ہوا ہے اور ٹائم بھی پورے پیک آورز ہیں جب لوگ اپنے کاموں سے واپس جا رہے ہیں، تو یہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ریفلیکشن اس طرح ہے کہ ڈائریکٹر جنرل جو ہیں واسا وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم ڈی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تمام فیلڈ سٹاف اپنی پوزیشنز پہ موجود ہے۔ تو ہم ویدر پریڈکشن بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی اتنی ہیوی رین فال ہوئے گی اور اس ڈیوریشن میں ہوئے گی تو وہاں پہ پونڈنگ ہوئے گی۔ ہم گورنمنٹ کی پرفارمنس گیج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آن ٹو ہے، الحمدللہ ہم سارے کے سارے اپنی ہائی پروفائل میٹنگز چھوڑ کے فیلڈ میں موجود ہیں۔ ڈی جی واسا میرے ساتھ، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جی۔ کیا پوزیشن ہے لاہور کی، نشیبی علاقوں کی کیا پوزیشن؟ جی بڑے تھوڑے سپین میں ہیوی ڈاؤن پو ہوا ہے تو ہم سارے اس کے اوپر آن ٹوز ہیں اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 گھنٹے میں اس کو کلیئر کر دیں گے۔ یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ پہ اس مونسون میں 1300 ملی میٹر آج بارش ہو گئی ہوئی ہے اس 1.5-2 مہینے کے سپیل میں، جو کہ پچھلے سال سے تقریباً 25 سے 30% زیادہ ہے۔ تو یہ چینجنگ ٹرینڈ ہے اور وی آر اگین ٹو دیٹ اور ہم انشاءاللہ اس کو ہینڈل کریں گے۔ جی ایم ڈی واسا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم سر۔ سر جہاں پہ بارش ہو رہی ہے، ٹیمیں پہنچ رہی ہیں، پانی کتنے گھنٹوں میں ہم کلیئر کر سکیں گے آئندہ؟ یہ دیکھیں اس وقت 120 mm بارش ہو چکی ہے، ابھی ماڈریٹ رین چل رہی ہے، لیکن الحمدللہ پورا سسٹم ہمارا افیکٹولی کام کر رہا ہے۔ تمام ڈسپوز اسٹیشنز، جنریٹر سیٹس اور پورا اسٹاف، تمام گاڑیاں فیلڈ میں ہیں اور افیکٹولی ڈسپوزل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1-2 گھنٹے میں آپ کو لاہور کلیئر نظر آئے۔ آپ نے ایم ڈی واسا، ڈی جی واسا اور بلال یاسین صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ اس پورے آپریشن کو مانیٹرنگ کر رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے جیسے بارش رکے گی، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سیزن میں لکشمی چوک میں 1300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جو پچھلے سالوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے جیسے بارش تھمے گی اس کے فوری بعد واسا کی مشینری جو سی وہ حرکت میں آ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی۔ شہر میں ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب بوہر والا چوک اور حاجی کیمپ مکمل طور پر زیر آب آ گئے ہیں۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے۔ جی بالکل، مونسون بارشوں کا 10واں اسپیل اور آج صوبائی دارالحکومت میں بادل خوب برسے، پورے لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں اور اس وقت میں ریلوے اسٹیشن بورڈ والا چوک حاجی کیمپ کے قریب موجود ہوں، جو کہ پورا علاقہ موسلادھار اور طوفانی بارش کی وجہ سے جل تھل ہو کر رہ گیا ہے۔ نکاسی آپ کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ٹریفک کا جو نظام ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہے، کاروباری زندگی برے طریقے سے متاثر ہے۔ ابھی تک یہاں پانی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی بدترین ہے، کیونکہ مؤثر طریقے سے پانی نہیں نکالا گیا اور ابھی تک جو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں نکالنے کے لیے وہ بھی اپنے کام کو اس طریقے سے سر انجام نہیں دے رہی کہ جلد از جلد پانی نکالا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفانی بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سی ٹی او لاہور ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے وارڈنز کے ہمراہ خود متحرک ہیں۔ مال روڈ، جی روڈ، فیروز پور روڈ اور دیگر شاہراہوں کا جائزہ بھی لیا ہے، تو آپ کو بتا رہے ہیں سی ٹی او لاہور ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے وارڈنز کے ہمراہ خود متحرک ہیں۔ مال روڈ، جے روڈ، فیروز پور روڈ اور دیگر شاہراہوں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سی ٹی او لاہور ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے وارڈنز کے ہمراہ خود متحرک ہیں۔ مال روڈ، جے روڈ، فیروز پور روڈ اور دیگر شاہراہوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ مال روڈ، جے روڈ پر اس وقت ٹریفک کی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سی ٹی او لاہور خود فیلڈ میں متحرک ہیں اور آپ کو بتائیں کہ
मॉल रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड पर इस वक्त जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया अब्दुर्रहमान ने। बताइए अब्दुर्रहमान, क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? जी बिल्कुल, बारिश के बाद सीटीओ डॉक्टर अतर वहीद खुद सड़कों पर मुतहरिक नजर आए और ट्रैफिक रवानी का भी मुसलसल जायजा लेते रहे। डॉक्टर अतर वहीद वार्डन्स के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों पर खुद मुतहरिक रहे और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का जायजा लिया। सीटीओ लाहौर ने माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर आम शाहराहों का दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात वार्डन्स को ब्रीफ किया। शदीद बारिश और सड़कों पर जमा पानी के बावजूद ट्रैफिक वार्डन्स शहरियों की सहूलत के लिए अलर्ट ड्यूटी अंजाम देते रहे। डॉक्टर अतर वहीद ने कहा कि शहरियों की सहूलत ट्रैफिक पुलिस लाहौर की अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए तमाम एसपीज, डीएसपीज और वार्डन्स को सड़कों पर रहने और शहरियों की मदद करने की हिदायत कर दी गई है। सीटीओ ने मजीद कहा कि तमाम लिफ्टर्स और ब्रेक डाउन गाड़ियां भी शहरियों की फौरी मदद के लिए हमा वक्त सड़कों पर मौजूद रहेंगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सदर लाहौर आटा डीलर्स एसोसिएशन हफीजुर रहमान अब्बासी की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुकूमत के मुकर्रर रेट से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है। आटा डीलर एसोसिएशन का पैरा फोर्स की बिला वजह छापों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। 1800 रुपये में खरीदे गए 15 किलो आटे के थैले बेचने के लिए 3 रोज़ देने का मुतालबा है। जबकि आपको बताएं कि हफीजुर रहमान अब्बासी का कहना है कि हम पंजाब हुकूमत के मुकर्रर रेट पर आटा बेचने को भी तैयार हैं। तो आपको बता रहे हैं सदर लाहौर आटा डीलर एसोसिएशन हफीजुर रहमान अब्बासी की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ है। हुकूमत के मुकर्रर रेट से मुताबिक तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, इस बारे मज़ीद। जी बिल्कुल, सदर लाहौर आटा डीलर एसोसिएशन हफीजुर रहमान अब्बासी की ज़रिए सदारत ये इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत के मुकर्रर करदा आटों के नरखों से मुतालिक जो है तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सीनियर नायब सदर लाहौर आटा डीलर एसोसिएशन मोहम्मद नदीम ने भी शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फरूक अमीर भट्ट, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी राना मोहम्मद अफजल, लाला तसव्वुर, कासिम जट समेत दीगर अहदेदारान मौजूद थे। लाहौर आटा डीलर एसोसिएशन का पैरा फोर्स के बिला वजह छापों, दुकानों को सेल करने पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये भी कहा गया कि हुकूमत से गुजारिश है कि हमने 15 किलो वाला थैला 1800 रुपए में खरीदा है, इसे बेचने के लिए 2-3 दिन का वक्त दिया जाए और महंगे दामों आटा खरीद कर सस्ते दामों बेचना जो है वो मजबूर किया जा रहा है कि महंगा आटा खरीद कर सस्ता बेचा जाए। मार्केट इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है और इस हवाले से सदर हफीजुर रहमान अब्बासी का कहना था कि मार्केट में हुकूमती रेट पर आटा दस्तयाब न होने की वजह से बहुत बड़े बहरान का खदशा है। हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर की गई है। फ्लोर मिलर हमें 1790 से 1850 रुपए तक आटा जो है 20 किलो का दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये महंगा फरोख्त करना पड़ रहा है। रिटेल कीमत पर हमारा कमीशन मार्जिन सिर्फ 1% से बढ़ाकर 5% किया जाए ताकि जो रिटेल डीलर्स हैं उन्हें भी जो है वो आटा फरोख्त करने में आसानी मिल सके। और इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो फ्लोर मिल पर भी जाकर आटे की कीमतों से मुतालिक जो है वो छापे मारे ताकि महंगा आटा फरोख्त करने वालों को पकड़ा जा सके। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पीडीए में पंजाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी है। सैलाब और इसके बायस पेश आने वाले हादसात में जाबाज अफराद की तादाद भी 60 हो गई है। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4300 से ज़्यादा मुताजात मुतासिर हुए हैं। सुहेल कैसी की रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। सैलाब से होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सैलाब के बायस जाँ बहक होने वालों की तादाद 60 हो गई। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4300 से जायद मौजाजात मुतासर हुए, जबकि मजमूई तौर पर 41,99,000 अफराद मुतासर हुए। सैलाब में फंस जाने वाले 21,47,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 412 रिलीफ और 492 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 432 वेटरनरी कैंप्स भी काम कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ सरगर्मियों के दौरान 15,49,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने के लिए 15 सितंबर से सर्वे का अमल शुरू कर दिया जाएगा। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। बारिशों के दौरान सानेहात का सिलसिला ना रुक सका। लाहौर में रवां साल करंट लगने के 872 वाक़यात में 83 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दर्जनों अफराद उम्र भर के लिए मासूर, जबकि 307 अफराद को मौके पर तिबी इमदाद दी गई है। 481 अफराद हस्पताल में मुंतकिल हुए। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में रवां साल बारिशों के दौरान करंट लगने के 872 वाकयात। रेस्क्यू जराये के मुताबिक करंट लगने से 83 अफराद जाँ बहक, दर्जनों अफराद उम्र भर के लिए माजूर, 307 अफराद को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई, 481 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रवां साल काम के दौरान करंट लगने से 10 लेस्को मुलाजमीन भी जान की बाजी हार गए। बिजली के निजाम में खराबियों के बायस आवाम और मुलाजमीन दोनों अदम तहफ्फुज का शिकार। जराये के मुताबिक जगह जगह टूटी इंसुलेशन और जमीन पर तार गिरना हादसात का बड़ा सबब करार दिया गया। अवामी हलकों ने मुतालबा किया कि नंगे तारों और पुराने खंभों की तब्दीली को यकीनी बनाया जाए। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदादी हकीकी भाईचारे की इलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सऊदी ताउन मुतासरा ख़ानदानों के लिए रिलीफ और यकजहती की इलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इजहार अखुवत। किंग सुलेमान एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से पंजाब के 7 अजला के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुँच गए। वज़ीर आला की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर ने इमदादी सामान PDMA के सुपुर्द किया। इमदादी सामान में 10,000 शेल्टर किट्स, 10,000 फूड पैकेजेस, सोलर पैनल्स, किचन सेट, कंबल वगैरह शामिल हैं। 95 किलोग्राम पर मुश्तमिल फूड पैकेज में आटा, चीनी, दालें और कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल हैं। इमदादी सामान कसूर, झंग, खानेवाल, हाफजाबाद, चिन्योड, मुल्तान और टोबा टेक्सिंग के सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना। मरियम नवाज ने कहा सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अखुवत और भाईचारे तसलसल की अक्कासी करता है। शाह सुलेमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत उम्मत मुसलमा के लिए मशअल राह है। आजमाइश की घड़ी में सऊदी अरब ने एक बार फिर हकीकी बरादर मुल्क के तौर पर साथ दिया है। इमदादी सामान PDMA और हयात फाउंडेशन के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। उस्मान बुखारी कहती हैं सैलाबी पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। 42 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। सैलाब अब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका है। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें हो रही हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग बोली, हमारे लोग सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे। टिकटॉकर सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन के लिए बेहतरीन पैकेज की हिदायत की है। अभी जो सैलाब जहाँ जनूबी पंजाब के जिन इलाकों में पहुँच गया है वहाँ पर बारिशें जो हैं वो भी एक गज़ब ढा रही हैं और ये एक दोहरा इम्तिहान होता है इंतज़ामिया के लिए भी और जो सैलाब से मुतासर लोग हैं उनके लिए भी, कि एक तो वो पानी जिसके ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं है, ना आपको अब उसकी कोई इंटीमेशन मिलती है, आपको ऐन आखिरी वक्त पे जो है वो बता दिया जाता है सरसरी से आके जी पानी आने वाला है। अब कितना पानी आने वाला है, उस पानी को मैनेज कैसे किया जाना है, ये आपको जो है वो अपने ओन पे करना पड़ता है। ये जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हमारे बहन भाई हैं उनकी यकीनन बारिश के साथ उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी तैयारी और जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने इस इतनी बड़ी आफत में रिस्पॉन्ड किया है, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यही है कि इसकी कोई नज़ीर पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है कि एक तरफ तीनों सूबों के तीनों दरियाओं के अंदर एक ही वक्त में जो है वो पानी आए, 4 महीने का मॉनसून का स्पेल हो और जो है अर्बन फ्लडिंग, जो बारिश हो रही है उससे एक अर्बन फ्लडिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं और अब ये भी एक डिबेट है, बिल्कुल ठीक डिबेट है कि वो दरियाओं का वो इलाका जहाँ पे आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ आबादियाँ बनी, क्यों बनी, कुछ जो है बग़ैर किसी रिकॉर्ड के बनी, कुछ रिकॉर्ड के साथ बनी। अब उसका जो है उसके लिए क्या प्लान हो सकता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो तैयारी कर रही हैं जिसके अंदर जो हमारे मुतासरीन हैं उनको रिलीफ के लिए तो यकीनन होगा ही, लेकिन जो आने वाले दिनों में इन जैसी आफात से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के जो इक़दामात हैं वो
लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कहना से अगवा होने वाला 6 माह का बच्चा बासियाब। पुलिस ने शेरख्वार बच्चे को 24 घंटों में बासियाब करवाकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे की वालिदा सोफिया बीबी की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है। कहना से अगवा होने वाला 6 माह का बच्चा बासियाब करवाया गया है। पुलिस ने शेरख्वार बच्चे को 24 घंटों में बासियाब करवा लिया है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। बताइए अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज़ खबर लेते हुए बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया है। कानानो में एक ही दिन में 2 बच्चों के अगवा और अगवा की कोशिश के ये वाकयात पेश आए थे, जिसे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सिर्फ 24 घंटों के अंदर बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। कानानो के इलाके में एक ही दिन में बच्चों के अगवा और अगवा की जो कोशिश के वाकयात थे, उससे इलाके में काफी खौफ और हिरास पाया जा रहा था। पहला वाक़या जामे मस्जिद मदीना वाली कच्चा आजाद रोड में पेश आया, जहां एक खातून अपनी छोटी बेटी नीलम के हमरा दवा लेने जा रही थी। नीलम ने अपनी गोद में 6 माह का भाई गुलाम मुस्तफा रखा। उसी दौरान एक मालूम शख्स ने बच्ची को वरगला कर बच्चे को अगवा कर लिया। उसी रोज काना के दूसरे इलाके में भी बच्चे के अगवा की कोशिश की गई, ताहम बच्चे की वालिद की बरवक्त शोर मचाने पर अगवाकार फरार हो चुका। लेकिन पुलिस के मुताबिक वाकये की इत्तला मिलते ही DIG ऑपरेशन ने हुए मॉडल अखलाकुल्लाह तारक की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी, जिस पर कानानो पुलिस और ऑपरेशन विंग मुश्तरका कार्रवाई करते हुए टेक्नोलॉजी CCTV और फोरेंसिक शवाहिद की मदद से 6 माह के बच्चे को 24 घंटों में बाजियाब करा लिया गया। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी है। शहर के 41 स्कूल्स पे सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कैंप भी खत्म कर दिए गए हैं। स्कूल में तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में हालात मामूल पर आने लगे। शहर के 41 सरकारी और निजी स्कूलों में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कैंप खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक इन स्कूलों में 29 सरकारी और 12 प्राइवेट इदारे शामिल थे। कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को आर्जी पनाह दी गई थी। रिलीफ कैंप कायम होने के बायस इन इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल थीं। अब इन स्कूलों में दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने कैंप्स खत्म करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी से जहां मुतासरा खानदानों ने सुख का सांस लिया है, वहीं बच्चों के तालीमी नुकसान की तलाफी का अमल भी शुरू हो गया है। कैमरा टीम के हमरा आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। ब्यूरोक्रेसी की रवायती लापरवाही। हुकूमत पंजाब ने मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के लिए मुश्तरका स्मार्ट कार्ड मुतारिफ करवाने का मंसूबा ताखिर का शिकार। शहरियों को सफ़र के लिए अलग अलग कार्ड और टोकन इस्तेमाल करने से दुश्वारी का सामना है। हुकूमत पंजाब के शहरियों की सहूलत और मास ट्रांसफर सिस्टम को जदीद बनाने के लिए अहम इकदाम। जुलाई में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के लिए एक ही स्मार्ट कार्ड जारी करने के ऐलान हुआ। 8 अगस्त से स्मार्ट कार्ड का शहरियों को बाकायदा इजरा शुरू किया जाना था। ब्यूरोक्रेसी की रवायती लापरवाही के बायस फलाही मनसूबे पर अमल न हो सका। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस के मुसाफिरों को अब अलग अलग कार्ड बनवाने पड़ रहे हैं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक सॉफ्टवेयर की अपडेट मुकम्मल होने के बाद दोनों सिस्टम्स को यकजा कर दिया जाएगा। टोकन सिस्टम के खात्मे की नई तारीख अक्टूबर 2025 रखी गई है। एजाज चौधरी की सेनेट इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि दूसरे फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत की। एजाज चौधरी के वकला बैरिस्टर तैमूर मलिक और राना मुदस्सिर उमर ने दलाइल दिए कि एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी को 28 जुलाई को सेनेट की सीट से डी नोटिफाई कर दिया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से एजाज चौधरी को डी नोटिफाई करने की दरख्वास्त इरसाल नहीं की गई। एजाज चौधरी के वकला का मौक़िफ़ था कि पेशावर हाई कोर्ट शिबली फराज और उमर अयूब की दरख्वास्त पर इलेक्शन रोकने का हुक्म दे चुकी। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए हैं। अदालत एजाज चौधरी की सेनेट नशिस्त से नाअहली को मुअत्तल और सेनेट नशिस्त पर इंतखाब रोकने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए पंजाब की सीट पर सेनेट का इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि दूसरे फरीक को सुने बगैर सेनेट इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर सकते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अरासी की नीलामी का लदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने MCL के लेकर एडवाइजर को जवाब जमा करवाने के लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से अराजी की नीलामी का लदम करार देने का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने शहरी मोहम्मद अदरीस की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा अदालत में पेश हुए। MCL के लीगल एडवाइजर इफ्तिखार अहमद मियां ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस का ताल्लुक 15 फरवरी 2023 के ऑर्डर से है। अदालत इजाजत दे तो जवाब फौरन जमा करवा सकते हैं। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने रिमार्क दिया कि DC लाहौर को बुलवाने का शौक नहीं, आप सीनियर काउंसिल हैं, चाहे तो जवाब जमा करवा दें। अदालत ने 30 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। दरखास्त गुजार ने 2012 में इचरा के इलाके में 2 कनाल अराजी की नीलामी का लदम करार देने के कदम को चैलेंज कर रखा है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। फिलहाल इतना ही।